Class 8. Good morning, boys. Good morning, girls. Good morning to your parents and grandparents. Supplementary reader. It so happened. Page number 30, line number 7. Why do you think you did not like studies? Study exam. Was it because you felt you could not cope? Cope के meaning given है manage, handle, manage with, handle or deal with, manage, handle, deal with. Was it because you felt you could not cope, could not deal with? The curriculum, meaning given, syllabus, पाठ्यक्रम, I was very bad at languages. Bad means poor. Bad means weak, W-E-A-K. Language means भाषा. English language, Hindi language, Sanskrit language, Urdu language, languages. I was very bad at languages. Science and geography I could deal with. Deal with means solve. Maths was very bad. Maths was shaking. Very bad means shaking. S-H-A-K-I-N-G. I just means simply. ऐसे सब्जेक्ट जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था. I was studying math for the sake of studying. जिस दिखाने के लिए कि मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, मैं मैथ पढ़ रहा हूँ. What they taught me today, they mean teachers. टीचर एक दिन जो पढ़ाते थे उससे 2 दिन बाद में भूल जाता था. I will not bother. Bother means worry. Because there was no application of mind. Application means use, U-S-E, noun है. यूज वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, या नाउन है हिंदी मीनिंग उपयोग. एप्लीकेशन ऑफ माइंड है टू बिगिन विथ. टू बिगिन विथ मीन्स at first.
दूसरी मीनिंग है फॉस्टली, FIRST। Did you think what they taught them in teachers in the school was boring? Boring means dull. दूसरी मीनिंग है नॉट इंटरेस्टिंग। Was boring, was dull, was not interesting. Or did you feel that once you understood the concept of what was being taught? Concept means basic idea. Concept means basic idea. So you lost interest in the rest of the lesson. Living in a boarding school. Boarding school means hostel. Boarding school means hostel. It's difficult. You are just living from day to day. दिन प्रतिदिन, from day to day. English meaning with nothing, with no thoughts. With no thoughts, from day to day, with no thoughts or plans for the future. With no thoughts for or plans for the future. Nowadays, meaning at the present time, इसको ऑपोजिट होता है in those times. Nowadays, at the present time. There are so many days back then. Back means into the past. Literally meaning in those times, back then, in those times. Whenever we had tests, we used to just copy. The teacher thought that we had done our work.
there is a contention. Contention means belief. कॉमन दूसरी मीनिंग अधर्षण, ASSERTION, कहावत। गिफ्टेडनेस इंग्लिश मीनिंग गिवन बॉटम में, हिंदी मीनिंग प्रतिभा। प्रतिभा, गिफ्टेडनेस। और लर्निंग डिसेबिलिटीज, गहन अध्ययन। लर्निंग मीन्स गहन अध्ययन, डिसेबिलिटीज मीन्स असमर्थता। लर्निंग गहन अध्ययन, डिसेबिलिटीज, इनएबिलिटीज, असमर्थता, वो hand in hand, hand in hand means linked together, linked together। जैसे जहाँ बजती है शहनाई वहीं मातम भी होते हैं। जहाँ बजती है शहनाई वहीं मातम भी होते हैं। इंग्लिश में एक आप लिख सकते हैं वॉर एंड सफरिंग। वॉर एंड सफरिंग गो हैंड इन हैंड। मतलब चोली दामन का साथ है। Do you think this applies to you? Go hand in hand की एक और मीनिंग आप लिख सकते हैं go together, go together। Well, take some students from my class। अब मेरी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स का ही उदाहरण ले लो। Those who always stood first or second, मेरी क्लास में जो हमेशा फर्स्ट सेकेंड आते थे, are today doing very ordinary jobs, बहुत साधारण सी नौकरी कर रहे हैं। ऑर्डिनरी जॉब्स कर रहे हैं, साधारण सी नौकरी कर रहे हैं, बहुत कम पैसे पे काम कर रहे हैं। I have come across this situation, met by chance। ऐसी सिचुएशन को मैंने देखा है, बाई चांस ऐसी स्थिति को देखने को मिला है सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस में, वेयर पीपल टेल मी, जहाँ लोग मुझको बताते हैं दैट डियर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टैलेंट। बताते हैं कि हमारे साथ के रहने वाले जो टॉपर्स थे, क्लास में फर्स्ट सेकेंड वाले थे, आने वाले थे, वो बहुत ऑर्डिनरली डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टैलेंट।
means doing very ordinary jobs today. Ordinarily today means doing very ordinary jobs today. Means leading an ordinary life. Living an ordinary life. In school, I think, living our lives, they have made us street smart. Street smart English meaning given है Hindi meaning मनमौजी. I have learned more by doing. मैंने ज़्यादा सीखा है करके मैंने सीखा है. What I did on my own. On my own means without help. Then World Academics, page number 31. On my own means without help. On my own, अपने आप. To English meaning alone. Page number 31. Academics. Meaning शिक्षक. Academic should have taught me एक शिक्षक, academic शिक्षक. That is because the personality and skills. Personality means quality. Skills means abilities. Skills means abilities, abilities. You were able to find expression, abhivyakti, expression, abhivyakti. In manner you were comfortable. Comfortable means confident. विश्वस्त. Divide means broke, and you divide every rule. Divide means broke every rule with, so that nobody would stop you from doing what you needed to do. I was more interested in other things. If, for example, while in class, जब मैं क्लास में होता था और इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड और बाहर बारिश होती रहती थी, होने लगती थी, बारिश शुरू हो जाती थी, तो आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर. तो मैं सोचता था बहते हुए पानी के विषय में, और ये कि कैसे एक डैम बनाया जाए, बांध बनाया जाए, टू ब्लॉक इट. ब्लॉक मीन्स स्टॉप, इसको बहने से रोकने के लिए.
I would be thinking about the flow of water. Flow means movement, M-O-V-E, प्रोनाउन है यहाँ पे, ये वर्ब भी होता है. Water flows, wind blows, पानी बहता है, हवा बहती है. बहना सब दोनों के लिए है, लेकिन इंग्लिश का वर्ड डिफरेंट है. वाटर फ्लोज, विंड ब्लोज. Within the dam, and how much of water the dam would be able to hold. और ये कि डैम में कितना पानी आएगा. That was my interest for the day. उस दिन में इसी चीज में मेरी रुचि होती थी. मैं मेंटली यही सब कैलकुलेट करता रहता था कि डैम के बारे में, फ्लो वाटर विद इन द डैम, और ये कि वाटर कितना होल्ड कर सकता था वो डैम. When students lost a button, जब कोई छात्र की बटन खो जाती थी while playing or fighting, खेलते हुए या आपस में फाइटिंग करते हुए, तो they would come running to me, तो दौड़ते हुए मेरे पास आते थे. And I would cut a button for them. चाक से मैं एक बटन का पीस निकाल लेता था, काट लेता था, यूजिंग अ ब्लेड का प्रयोग करके. डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इम्पोर्टेंट. अनुशासन स्कूल में बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट थिंग थी. डिसिप्लिन, अनुशासन, द स्कूल वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड नहीं पड़ेगा, अफोर्ड मीन टेक रिस्क. यहाँ पे अफोर्ड मीन्स टेक रिस्क. अफोर्ड की मीनिंग BUY, बाय भी होता है. आई कांट अफोर्ड अ कार. To have a button missing means lost, LOST. No student could afford, no student could take risk to have a button missing. The student would get past dinner with a full uniform, and after that it did not matter. हर स्टूडेंट को डिनर में जाना पड़ता था फुल नीट यूनिफॉर्म, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म. एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर. उसके बाद कोई बात नहीं, कोई भी चलेगा. कमिंग टू द प्रेजेंट, अब वर्तमान में हम आते हैं. ये तो पास्ट का अब तक डिस्कशन हुआ अबाउट द पास्ट. हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव टू क्लाइंट. आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मीन्स डिज़ाइन, DESIGN. किस प्रकार का डिज़ाइन आप अपने क्लाइंट को, आप अपने कस्टमर को देंगे. क्लाइंट मीन्स कस्टमर, CLIENT. जैसे एक डॉक्टर के लिए पेशेंट जो है वो कस्टमर होता है. एक लॉयर के लिए जो मुकदमा ले लिया है, मुकदमा चाहता है लड़ने के लिए, वो व्यक्ति लॉयर का क्लाइंट होता है. दुकान पे आप सामान खरीदने जाते हैं तो दुकान के आप कस्टमर हुए. आइए अब थोड़ा प्रेजेंट में बात करें. आप कैसे डिसाइड करते हैं कि क्लाइंट को किस प्रकार का स्ट्रक्चर चाहिए, किस प्रकार की डिजाइन वो लाइक करेगा. आई लुक एट द क्लाइंट फेस. मैं क्लाइंट के फेस को एग्जामिन करता हूँ, देखता हूँ, उसके कपड़ों को देखता हूँ जो पहने हैं वो,
द वे ही टॉक्स, किस तरह बात करता है, और प्रोनाउंस कैसे करता है, उच्चारण कैसे करता है, द वे ही किस तरह खाता है, एंड वुड नो व्हाट इज टेस्ट वुड बी लाइक, और द वे ही नो, किस तरह जानेगा कि व्हाट इज टेस्ट वुड बी लाइक, इसका टेस्ट किस प्रकार का होगा। तो इस प्रकार से मैं ये सब चीज़ें स्टडी करके कि किस तरह से उसका चेहरा कैसा है, और कपड़े कैसे पहनता है, बातें किस तरह करता है, प्रोनाउंस किस तरह करता है, उच्चारण किस तरह करता है, किस तरह से खाता है, इस सब से आई वुड नो, मैं जान लेता हूँ कि व्हाट इज टेस्ट वुड बी लाइक, उसका टेस्ट किस प्रकार का होगा। आई कैन रिलेट टू पीपल इन द वे व्हाट विल बी कंफर्टेबल। आई कैन रिलेट मीन टेल, TELL, टेल टू द पीपल, टू द क्लाइंट, यहाँ पीपल मतलब क्लाइंट से है, in a way that would be comfortable. Comfortable means confident, जो कि कंफर्टेबल होगा, जो कि कॉन्फिडेंट होगा। द स्केच means structure design. The sketch very spontaneously. I sketch, I make a design. Sketch verb है, English meaning to make a drawing. To make a quick drawing. Sketch means to make a quick drawing. आई स्केच में एक जल्दी से एक ड्राइंग बना देता हूँ, वेरी स्पॉन्टेनियसली। in a very natural way. Very spontaneously means in a very natural way, बहुत सहज भाव से, in a very natural way, very spontaneously, in a very natural way, बहुत ही सहज भाव से कागज पे एक ड्राइंग बना देता था, on the spot. At that very moment, on the spot means at that very moment, उसी क्षण उसने बताया, मैंने उसका सरफेस वगैरह स्टडी किया और तुरंत एक ही मैंने क्विक ड्राइंग बनाया एक। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस। अब उस पेपर को मैं ऑफिस में जो लोग मेरे काम करने वाले होते थे उनको दे देता था। यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, मीनिंग गिवन है नेचुरली। इंस्टिंक्ट से ये वर्ड बना है, इंस्टिंक्टिवली। Birds make nests by instinct। एक सेंटेंस है कि इंस्टिंक्ट का प्रयोग किया है।
Birds make nest by instinct, INSTINCT. वो एक सहज भाव से बनाती हैं। ये उनका स्वभाव है। नेस्ट बना रही, उनको खुद पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। इंस्टिंक्टिवली, सहज भाव से, सहज ज्ञान से आप इसको करते हैं, सहज ज्ञान से। कॉल इट इंस्टिंक्ट। वो बताया नहीं, इंस्टिंक्ट से बना है, इंस्टिंक्ट से बना है, इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्ट मीन्स नेचर। कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट नेचर, कॉल इट अरिथमेटिक, whatever. जो कुछ भी कह लीजिए, चाहे आप इसको इंस्टिंक्ट कहिए, चाहे इसी को अरिथमेटिक कहिए, whatever. Now it comes to me like arithmetic, mathematics. आपने मुझको, मैं तो जानता हूँ, इसको सीखता हूँ, इसको जैसे मैथमेटिक्स सीखा जाता है, ये आता है मुझको उसी तरह से जैसे मैथमेटिक्स किसी को आता है। मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर and making a sketch, making a design, making a picture, sketch के मीनिंग पिक्चर भी होता है। From all that is mathematics, और उससे एक पिक्चर बना देना, यही, इसी को मैं, मेरी मैथमेटिक्स की डेफिनेशन यही है। ऑथर की क्या डेफिनेशन है मैथ की? पुटिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग इट ए स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स। सोशियोलॉजी मीन्स समाज विज्ञान। सोशियोलॉजी, हियर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्किल। तो फुल सर्किल मीन्स टू कंप्लीट अ फुल सर्कल। Come to a full circle means complete a full circle. Where Mr. Contractor has derived means obtained. His own interpretation of mathematics. Interpretation means यहाँ पर definition. इंटरप्रिटेशन मीन्स यहाँ पे डेफिनेशन, दूसरी मीनिंग आप लिख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विथ। और जैसे लिया है उन्होंने कहाँ से? उस सब्जेक्ट से जिसको कि वो हेट करता था जब स्टूडेंट था।
अब उसी से डील करता है। अब उसी से मैनेज करता है। एंड दैट इज द एंड ऑफ द लेसन। कल भी आप इसी बुक सब्जेक्ट को करेंगे जो कि क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 28, comprehension check. Question number 1, what did Hafiz contractor have nightmares about? किस चीज़ के से वो घबराता था? वो घबराता था मैथमेटिक्स से। आंसर, Hafiz contractor Hafiz contractor had nightmares. Hafiz contractor had nightmares about mathematics. Full stop. Mathematics exam, about mathematics exam. About mathematics exam. What did the principal say to him which influenced him deeply? Deeply means greatly. Question number 2, answer. Principal told AC Principal told AC that he must rise to the occasion. Full stop, bracket. पहले तो आप अंडरलाइन कीजिए, टू राइज टू द ओकेजन को अंडरलाइन कर लीजिए और ब्रैकेट में आगे लिखिए ओकेजन के बाद टू एक्सेप्ट द चैलेंज, टू एक्सेप्ट द चैलेंज। Question number 3, that year I did not step out into the field. What was he busy doing that year? Answer, he was busy studying, S-T-U-D-Y-I-N-G. He was busy studying books. He was busy studying books that year. उस वर्ष वो खेल के मैदान में पैर भी नहीं रखा। तो किस काम में बिजी था वो स्टडी में बिजी था, किताबों के अध्ययन में बिजी था। क्वेश्चन नंबर 4, 1, what distraction did a fish contractor create one day?
Distraction was distraction within inverted commas. Distraction was inverted comma में चोर पुलिस. Two Indoman, for two Indoman, would you have liked to participate in the distraction? Had you been with him? Answer, yes, comma, every schoolboy, every schoolboy loves, yeah, likes distraction. That's all.